Hello students, welcome to Gnanbanjri Vidyapeeth Online Education. I Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our part 2 and we have started our geography portion. And in this geography portion we have started our chapter number 5. And in this chapter number 5 we have discussed about two important points. First of all, we have discussed about domains of the earth, and in these domains of the earth we have discussed about 7 continents on the earth. I hope you understood very well about all the points related to previous video lecture, and if you have any doubts regarding this previous video lecture you can ask me anytime. So now we are going to start our next topic, and it is hydrosphere, atmosphere and biosphere. So let's get started. So first of all, let's learn about hydrosphere. So Earth is called the blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers and underground water, and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. So first of all, हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज more than 71% of the earth is covered with water. That's why our earth is known as blue planet. And only 29% of the area is covered with the land. Then hydrosphere consists of all water forms like running water in oceans, rivers in lakes, then ice in glaciers, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हो गए. देन मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़. टोटल जितना भी वाटर है इसमें से 97% से भी ज़्यादा वाटर ओशंस में फाउंड होता है एंड ये काफ़ी सॉल्टी है. लाइक हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए जनरली ये यूज़फुल नहीं है. देन अ लार्ज proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, or a very small percentage is available as fresh water for human. So बाकी के 3% हम देखें तो जनरली आइस शीट्स के बीच में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, देन अंडरग्राउंड और काफ़ी स्मॉल परसेंटेज वाटर फ्रेश वाटर होता है जो लेक्स या फिर रिवर्स में हमें देखने को मिलता है एंड इट विल यूज़फुल फॉर द ह्यूमन. सो हम समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर का परसेंटेज ओनली 2.5% है और उसमें से भी कई सारा वाटर, लार्ज प्रपोर्शन आइस शीट और ग्लेशियर और अंडरग्राउंड में, मीन्स ये डायरेक्टली अवेलेबल हमारे लिए नहीं है. डायरेक्टली अवेलेबल होगा ओनली स्मॉल परसेंटेज एंड ये लेक, रिवर और वेल में होगा. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. Means हमारी अर्थ ब्लू प्लैनेट है, हमारी अर्थ पे वाटर सबसे ज़्यादा है, फिर भी हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. Then let's move to one activity. In this activity you have to count the squares given in the figure and answer the following. आपके लिए एक एक्टिविटी है. अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो. लाइक एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि भाई काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3. ये फिगर में जितने भी कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं इसके टोटल स्क्वायर्स काउंट करने हैं, जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप एंड साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. देन हमें ये आंसर्स
देने हैं कि भाई नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, देन विच इज़ लार्जर देन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये दो आंसर आपको लिखने होंगे इन द होमवर्क आफ्टर द काउंटिंग ऑफ द स्क्वायर। Then let's move to next topic and it is oceans. So oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. Very important point कि ocean हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सभी ओशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। Then the ocean waters are always moving. The three chief movements of the ocean water are the waves, tides and ocean currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean in order of their size. Like ocean की बात करें, ये continuously move होता रहता है। टोटल 3 टाइप्स की मूवमेंट होगी इन द ओशन वाटर्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द वेव्स, सेकेंड टाइड्स एंड थर्ड ओशन करंट्स। देन देर आर 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। एंड ये अकॉर्डिंग टू साइज है, लाइक सबसे साइज में बड़ा होगा पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन एंड लास्ट में होगा आर्कटिक ओशन। सो यू मस्ट रिमेंबर आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। Then the Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन होगा एंड ये हमारे अर्थ के 1/3 पार्ट में स्प्रेड है। देन मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। सो ये भी आपको याद रखना है कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ मारियाना ट्रेंच, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? इन द पैसिफिक ओशन। देन द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन शेप। ये भी आपको याद रखना है कि पैसिफिक ओशन का शेप होगा सर्क्यूलर। देन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकास सराउंड इट। सो पैसिफिक ओशन के सराउंड में हमें क्या देखने को मिलेगा? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देन द एटलांटिक ओशन is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is busiest ocean. So Atlantic Ocean की बात करें, Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world and it is S-shaped ocean. Then ये ओशन फ्लैंक्ड है, लाइक नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में वेस्टर्न साइड पे हमें देखने को मिलेगा एंड यूरोप एंड अफ्रीका में ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बिजीएस्ट ओशन, कि ये ओशन सबसे बिजीएस्ट है, यहाँ पर काफ़ी हार्बर एक्टिविटी होती है, मीन्स यहाँ पर कई सारे पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। देन द इंडियन ओशन इज़ ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री दैट इज़ इंडिया। The shape of ocean is almost triangular and in the north it is bound by Asia, in the west it is bound by Africa and in the east it is bound by Australia. So Indian Ocean की बात करें, ये एकमात्र it is only ocean named after a country, कि जो एक कंट्री के नेम के ऊपर उसका नाम देखने को मिलता है एंड इट इज़ इंडिया, कि इंडिया के नाम के ऊपर इंडियन ओशन का नाम रखा गया था। देन द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। यू मस्ट रिमेंबर द शेप ऑफ द इंडियन ओशन इज़ ट्रायंगुलर। देन नॉर्थ में हमें एशिया देखने को मिलेगा, वेस्ट की ओर अफ्रीका है एंड ईस्ट की ओर एशिया
ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट होगा। देन द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica, extends northward to 60 degrees south latitude। सदर्न ओशन ये एंटार्क्टिका को सर्कल करेगा, मीन्स एंटार्क्टिका के आसपास अराउंड सदर्न ओशन होगा एंड नॉर्थवर्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये फैला हुआ है। देन द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait, and it is bound by north coast of the North America and Eurasia. So Arctic Ocean, ये आर्कटिक सर्कल मीन्स 66.5 डिग्री नॉर्थ इसके आसपास है और सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को भी सराउंड करेगा। ये पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेच के साथ जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। यू मस्ट रिमेंबर। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज एटमॉस्फेयर। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दिस thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from harmful effects of the sun rays. Atmosphere is the layer of the gases, कि यहाँ पर हमें गैसेस कई सारे देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटेग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानेट। एटमॉस्फियर एक थिन ब्लैंकेट है एयर का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लानेट का। जनरली इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। एटमॉस्फियर का मेन इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें एयर प्रोवाइड करेगा जिससे हम ब्रीदिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे एंड हमें हार्मफुल सनरेज की इफ़ेक्ट से भी प्रोटेक्ट करेगा। देन द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउ 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers starting from Earth's surface are called troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. मीन्स एटमॉस्फेयर की हाइट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हुआ है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ about 1600 kilometers. Then the atmosphere is divided on the 5 bases, like it is divided into 5 types, 5 layers on the basis of composition, temperature and other properties. Like there are 5 layers like troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ये 5 लेयर हो गए एटमॉस्फेयर के। Then the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of the clean and dry air. वेरी इंपॉर्टेंट कि एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है इसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जो 99% गैसेस को फिलअप कर देंगे। So nitrogen 78% and oxygen 21% and other gases like carbon dioxide, argon and others comprise 1% of volume. Means 78% nitrogen, 21% oxygen and बाकी के जो 1% बचे हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन एंड अदर गैसेस हो गए। Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in the growth of living organism. ऑक्सीजन ब्रीदिंग एक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। एंड नाइट्रोजन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, दो
present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm, and it is also essential for the growth of planets. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में है बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सन की हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा एंड हमारी अर्थ को वार्म बना के रखेगा. सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट कि वार्म क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर द प्लांट्स. दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द growth of plants. Then the density of atmosphere varies with height. It is maximum at sea level and decreases rapidly as we go up. You know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in density of air. एयर की डेंसिटी की बात करें, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, एंड धीरे धीरे हम अपर साइड की ओर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी. एंड हमने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे डेंसिटी कम होगी एंड ब्रीदिंग के लिए हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है. सो दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड्स. तो जब भी माउंटेनिंग करनी है, क्लाइंबिंग करनी है तो हम हमारे साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भी रखेंगे जिससे ब्रीदिंग एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना होगी. देन द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स. द एटमोसफियर exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. Then temperature also decreases as we go upwards. टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता जाता है अगर हम ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं. एंड एटमोसफियर एक प्रेशर बनाएगा ऑन द अर्थ. ये प्रेशर वेराई करता है, मीन्स प्लेस टू प्लेस इसका वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है. एंड जनरली हाई प्रेशर कई एरिया पे होता है, कई एरिया पे लो प्रेशर होगा. एंड आपको ये भी याद रखना है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड. एंड जो एयर मूव करती है जिसको हम क्या बोलेंगे, विंड. देन लेट्स मूव टू बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज नोन एज द डोमेन ऑफ लाइफ. So the biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. So biosphere की बात करें, ये काफ़ी नैरो जोन है एंड यहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर का कॉन्टेक्ट होगा. मीन्स यहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर मिक्स होगी, यहाँ पर बायोस्फीयर जनरेट होगा एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर द लाइफ. यहाँ पर अर्थ पे लाइफ है ड्यू टू बायोस्फीयर. बायोस्फीयर होने के कारण ही हमारे अर्थ पे लाइफ है. सो देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. हमारी अर्थ पे, बायोस्फीयर पे कई सारे वैरायटी में देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो स्मॉल साइज़ में भी है और लार्ज साइज़ में भी है. माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, दे आर इन अ स्मॉल साइज, बट ह्यूज मैमल्स लाइक एलिफेंट, ब्लू व्हेल, they are in the high size. Then all the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. Then the organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. बायोस्फीयर में दो जनरली ग्रुप होते हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम. देन थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर. मीन्स ये थ्री डोमेन्स लाइक हाइड्रोस्फीयर, देन एटमोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर
एंड इससे ही बायोस्फीयर जनरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ फूड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to fast removal of soil from slopes. मीन्स अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट का रिमूवल हो रहा है, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर के लिए हम अगर रिमूव कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि भाई लैंड है जिसकी क्वालिटी काफ़ी कम हो जाएगी, धीरे धीरे सॉइल भी डिक्लाइन होने लगेगी. देन सिमिलरली अर्थ सरफेस may be changed due to natural calamities like earthquakes. मीन्स अर्थ सरफेस भी अर्थक्वेक्स के कारण उसकी जो सरफेस है ये काफ़ी चेंज होती रहती है. फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. अगर दो लैंड पार्ट सबमर्ज हो रहे तो इससे कई बार सुनामी भी आ जाती है. Then parts of Andaman Nicobar's island were submerged under water. So एग्जाम्पल क्या है कि भाई अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये वाटर के अंदर सबमर्ज हो गए ड्यू टू द अर्थक्वेक. Then discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for the human use. अगर हम वेस्ट मटेरियल को, कचरे को लेक्स एंड रिवर्स में डाल रहे हैं तो इससे क्या होगा, वाटर इज़ अनसूटेबल फॉर द ह्यूमन यूज़. हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए वाटर अनसूटेबल हो जाएगा. सो इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड ये जनरली वाटर एनिमल के लिए भी डैमेज क्रिएट करेगा. देन एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स pollute the air. The carbon dioxide is important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide leads to increase in global temperature. Emission like industries में से, थर्मल पावर प्लांट में से, व्हीकल्स में से काफ़ी गैसेस इमिट होते हैं एंड ये हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं. जनरली कार्बन डाइऑक्साइड कि ये हमारे एयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. इन द लास्ट पार्ट वी हैव आगे हमने क्या देखा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ को वार्म रखने का काम करेगा, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. This is termed as global warming, and there is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between domains and lithosphere, atmosphere and hydrosphere. So ये भी है कि भाई हमें क्या करना है, रिसोर्सेज का काफ़ी लिमिट में यूज़ करना है, बैलेंस जो नेचर का है इसको मेंटेन करके रखना है. लाइक डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये सभी का बैलेंस हमें मेंटेन करके रखना होगा. अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती रहेगी ऑन द अर्थ. So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about three important domains of the earth: hydrosphere, atmosphere and biosphere. I hope you understood very well about all the points related to this lecture. Then let's move to homework. So in this today's lecture आपका homework होगा question number 4, question number 5, question number 7. Question number 4, question number 5 and question number 7, it is the homework for you. You have to submit your homework up to 3 PM. ये आपका होमवर्क रहेगा एंड आपको मुझे सबमिट कराना होगा अप टू 3 PM. So I hope you understood very well about this video lecture, and if you have any doubt in this lecture then you can ask me anytime. So now this is end of the video.
Thank you for watching this video and have a nice day.